Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video of class 6th biology, we'll be moving further ahead in the chapter, a new chapter, that is getting to know plants. In this chapter, we'll study about the different structures of plants like their roots, shoot, leaves, the types of veins that are present in the leaves, what is the relationship between the vein and the leaf, कौन सा टाइप का रूट होता है, ठीक है, कौन से टाइप का वेन होता है उस लीफ में, ठीक है. विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस थिंग्स इन दिस चैप्टर. क्लियर? So today we'll just introduce ourselves to the various types of plants. Clear? And next, in the further videos ahead, we'll study about the types of roots, leaves, and the types of venation in that. After that, we'll study about the pollination, self-pollination and cross-pollination, and we'll also study about the structure of the leaf, about sepals, petals, clear? About the stem and pistil, and all about these things we'll be studying in this chapter. Clear? This is what this chapter totally consists of. Clear? So let us start the chapter, and the first topic that we're going to study in this chapter is herbs, shrubs and trees. This is your first. So let us start this. Here we'll study about what plants grow all around us. They grow on land as well as in water. It has been estimated that there are about 2,50,000 types of plants. अब ये हम लोगों ने अपने घर के अगल बगल में चारों तरफ में हम लोगों ने क्या देखा है? There are plants and trees, plants, herbs, shrubs, ये सारे हमारे घर के अगल बगल में, ठीक है. And they are the one that provide us with a food in the form of fruit, wood for fuel, clear? When the most important thing, that is oxygen for breathing and respiration. बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? We get this oxygen from plants. Clear? So they are of quite importance to us. They are very much important to us. Clear? Why? Because they provide us with the food as well as fuel, as well as the most important and the vital thing, that is oxygen. Clear? To make the study of plants easier, they have been divided into two groups, that is flowering plants and non-flowering plants. मतलब वो प्लांट जिसमें फ्लावर हो उसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, और वो प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं हो उसको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. तो ये प्लांट्स को हम दो तरीके में कन्वर्ट किए हैं. पहला तरीका क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें फ्लावर होता है, और सेकेंड इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता है, ठीक है. These are further subdivided into many subgroups, और इनको भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया है. जैसे देखिए आप, प्लांट लाइक रोज, सनफ्लावर, मैंगो आर फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. यानी प्लांट्स जैसे कि रोज, मैंगो, मैंगो एंड सनफ्लावर, ये सब क्या हैं? ये फ्लावर बियर करते हैं, यानी इनमें फ्लावर होता है, तो इनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स. लेकिन फर्न्स और मॉसेस, इनमें फ्लावर्स नहीं होता है, इनको क्या बोला जाता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है. क्लियर? अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट इज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड नेचर ऑफ देयर स्टेम. और अगला तरीका क्या है? साइज के बेसिस पे और उनके स्टेम के नेचर के बेसिस पे, ठीक है. इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं. दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. क्लियर? तीन कौन कौन से कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड किए? हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन गिवन इनटू टेबल 8.1. विल सी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन द टेबल 8.1. देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्लांट दैट आर डिफरेंट फ्रॉम herbs, shrubs and trees. These plant with weak stem that cannot stand upright. Some of these spread on the ground. For example, strawberry, they are called creepers. जैसे आप अपने घर के अगल बगल में देखते होगे कुछ बहुत से ऐसे कमज़ोर प्लांट्स होते हैं जो खुद ब खुद सीधा खड़ा नहीं रह सकते हैं. ऐसे प्लांट जो खुद ब खुद सीधा खड़ा नहीं रह सकते हैं और वो
आपके अगल बगल के ग्राउंड सरफेस पे स्प्रेड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स। एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉबेरी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप सपोर्ट दे दो तो वो उस सपोर्ट के मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, दे क्लाइंब अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। क्लियर? दे आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। इनको क्या बोला जाता है? क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेपवाइन और गॉड, ये आपका एग्जाम्पल है। क्लियर? तो आपको अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बीच में, तो क्रीपर्स क्या होते हैं? दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड क्लाइंबर्स दे क्लाइंब अपवर्ड या दे मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स इज स्ट्रॉबेरी एंड एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स इज ग्रेपवाइन एंड गॉड। क्लियर? यहां पे एक चीज और आपको याद रखना है, बनाना ट्री हैज अ ग्रीन सॉफ्ट स्टेम, इट इज एक्चुअली अ हर्ब, इट इज द बिगेस्ट हर्ब। यानी सबसे बड़ा हर्ब कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट हर्ब, दैट इज अ बनाना ट्री। बनाना ट्री क्या है? एक तरह का हर्ब है एंड इट इज अ बिगेस्ट हर्ब। क्लियर? नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। साइज के बेसिस में अगर हम डिफरेंस देखें तो हर्ब दे आर वेरी स्मॉल and their height is around 1 meter. Clear? Shrubs मीडियम साइज्ड हैं, इनका हाइट 1 to 3 मीटर के बीच में होता है, 1 से 3 मीटर के बीच में इनका हाइट होता है। एंड लास्ट आर ट्रीज, दे आर टॉल एंड दे आर मोर देन 3 मीटर। तो अगर साइज के बेसिस पे हम डिफरेंस करें तो हमारा हर्ब्स 1 मीटर के हाइट तक होते हैं। दोज प्लांट्स दैट आर अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स। जो 1 से 3 मीटर के बीच में होते हैं उनको हम श्रब्स बोलते हैं, और जो 3 मीटर से ज़्यादा जिनका हाइट होता है उनको हम ट्रीज बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम नेचर ऑफ स्टेम के बेसिस पे देखें तो हमारा हर्ब्स जो है दे हैव ग्रीन टेंडर स्टेम विथ फ्यू ब्रांचेस। इनका स्टेम ग्रीन और टेंडर मतलब वीक, फ्रेजाइल। क्लियर? विथ फ्यू ब्रांचेस, यानी ब्रांचेज इनमें बहुत कम होते हैं। अगर श्रब्स का बात करें तो हार्ड स्टेम बट नॉट वेरी थिक, ब्रांचेस अराइज नियर द बेस ऑफ द स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो हर्ब से थोड़ा हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा, थिक नहीं होता है। एंड लास्ट इज द ट्रीज, दे हैव गॉट द हार्डेस्ट एंड द थिकेस्ट स्टेम। इनके पास हार्डेस्ट एंड थिकेस्ट स्टेम होता है। क्लियर? अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग हर्ब्स का तो ग्रास, टमेटो, वीट, मिंट एटसेट्रा। अगर श्रब्स का एग्जाम्पल देखें चाइना रोज, लेमन, रोज, पॉमीग्रेनेट एटसेट्रा। और अगर ट्रीज का एग्जाम्पल देखें तो नीम, पीपल, मैंगो एटसेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। क्लियर? आफ्टर दिस विल सी अबाउट द प्लांट सिस्टम। अब प्लांट के स्ट्रक्चर, प्लांट में कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो प्लांट का अलग अलग पार्ट होता है उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर हम रूट के बात करें तो रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? शूट क्या करता है? ये प्लांट को इरेक्ट या अपराइट रखने में मदद करता है, सीधा स्ट्रेट रखने में मदद करता है। अगर लीव्स के बारे में बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। सो डिफरेंट पार्ट्स हैव गॉट डिफरेंट फंक्शंस। यू विल नोटिस दैट अ प्लांट हैज 2 पार्ट्स, और आपको पता चलेगा कि प्लांट में 2 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से 2 पार्ट हैं? सबसे पहला है द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, और द पार्ट दैट रिमेन्स इन द सॉइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम। यानी प्लांट का वो पार्ट, ये प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर में हो, इसे हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। वी कॉल दिस एज रूट सिस्टम। क्लियर? एंड नेक्स्ट, द ग्रीन पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम। और जो अबव द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर में, इसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं। और शूट सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सारे चीज मिलकर के आपके शूट सिस्टम को बनाते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल यू हैव टू स्टडी टुडे इन दिस वीडियो. Okay, that's all for today in this video everyone. Thank you.